নিয়ে আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি 26 তারিখে ভারতবর্ষে আধুনিক স্বাধীন দেশ হিসেবে खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक प्रतिरोध हो रहा है। कोलकाता के सड़कों पे प्रतिरोध हो रहा है और हम नजरुल इस्लाम जी की छवि लेके चल रहे हैं। আপনি সামনে চলে আসুন। প্রস্তাবনায় আপনারা সামনে আসুন, স্প্রেড হয়ে যাবে। यही कहेंगे कि बस धर्म और राजनीति में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म और मजहब एक व्यक्तिगत चीज है और धार्मिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हम खड़े हैं। आज मुल्क में धर्म के नाम पर जात पात बांटा जा रहा है। इसे रोकने के लिए हम पसंद लोगों को किस तरह आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ये देश के बहुसंख्यकवाद ये राजनीति के खिलाफ है। उनको अपना डर बाजू रख के सड़क पे उतरना चाहिए। देश में जो अब सबसे बड़ी मुसीबत है वो फ़िरका परस्ती है। और अब जो 22 जनवरी को जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दस्तूर के खिलाफ है। और जो लोग दस्तूर के मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं वो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम दस्तूर के और मुल्क की जो असल खूबी है उसके लिए यहाँ जमा है। और जो लोग मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है वो 22 जनवरी को वहाँ जमा है। तो हम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर मुल्क को देश को दस्तूर के मुताबिक आगे बढ़ाना है तो ये नफ़रत की फ़िरका परस्ती की अलामत जो बीजेपी और आरएसएस है उसके ख़िलाफ़ जमहूरियत को और दस्तूर के मुताबिक काम करने वालों को यहाँ पर दोबारा इक़्तिदार में आना है। না, আমি তো এখানে এসেছি আমার মাননীয় দলনেত্রীর অনুজ্ঞা পালন করতে। তিনি আমায় পাঠিয়েছেন এখানে এবং আমি খুব মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছি। তো একই মঞ্চে আমরা সবাই আছি, তো সমস্যা কোথায়? কারণ আমার মনে হয় যে দেশের যে যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, যারা দেশকে অটুট রাখতে চান, যারা সংবিধানকে মানতে চান, যারা ভারতবর্ষের নাগরিককে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করতে চান না, তারা একত্রিত হচ্ছেন এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের এই একত্রীকরণ, এইটা একটা খুব বড় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই। এই লড়াইয়ে যারা একসঙ্গে আছি আমরা, আমার কাছে সেটাই বড়। তবে আমার মনে হয় যে এটা এরকম একটা সময় আসবে যখন সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতে হবে, যেখানে রাজনৈতিক দলগত পরিচয়ের বাইরে আমাদের নাগরিক হিসেবে আমাদের ফান্ডামেন্টাল অধিকার যেখানে বিঘ্নিত হচ্ছে, যেখানে মূল সম্প্রীতির জায়গাটাকে নাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, পাশের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাকে প্রায় বিভাজনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ভেতরগুলোকে খুঁচিয়ে জান্ত প্রবৃত্তি বার করে আনা হচ্ছে, সেখানে আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়েও মানবিক পরিচয়, ব্যক্তি পরিচয়, নাগরিক পরিচয়, এগুলো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তো ভট্টাচার্য বাংলা বিহার মহারাষ্ট্রের কথা বলেছেন। আমার মনে হয় যে গোটা দেশেই একটা বিজেপি বিরোধিতা হাওয়া আছে। সেটা যদি ঠিকঠাকভাবে সমস্ত বিরোধী দল একত্রিত হয়ে কী ফর্মুলা হবে আমি বলতে পারবো না, আমি বলার অধিকারীও নই। হ্যাঁ, সেটা আমার পার্টি নেতৃত্ব করবে। কিন্তু যদি একটা জায়গায় আসে তাহলে শুধু বাংলা বিহার বা উড়িষ্যা না, অনেক জায়গাতেই বিজেপিকে আটকে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।
বলছি আজ যে বার্তা আমরা কি দিতে চেয়েছি, যেখানে মানুষের রুটি প্রশ্নকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বেকারিত্বকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য সেগুলোকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে ধর্ম এবং একটি মন্দির এটাকেই একমাত্র প্রাসঙ্গিক ইস্যু করে তোলা হচ্ছে, তখন তো এরকম সব মানুষ একত্রিত হবে। এ তো স্বাভাবিক ছিল, সঙ্গত ছিল। এটা বোধহয় চাকরি দিয়েছে, আপনি বোধহয় যেটা বলছেন সেটা আমাদের দপ্তর থেকে অবিলম্বে এটা মানে এর আগেই ব্যবস্থা নেওয়া ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। হাইকোর্ট ঠিক আমাদের যে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন, আমাদের দপ্তর থেকে ঠিক সেই সিদ্ধান্তই মান্যতা দেওয়া হয়েছে মহামান্য বিচারপতি সিদ্ধান্ত। আপনি বলছেন কংগ্রেস সিপিএম নেই, কংগ্রেসের জনসংগঠন আছে, আইটিসি আছে, সিপিএমের কাছে সিপিএম কাছে বলা হয়েছে আপনারা মানে একভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এখানে পশ্চিমবঙ্গে যে মমতা ব্যানার্জির এই 13-14 বছরের যে রাজনৈতিক পরিসর এবং তার যে উন্নয়ন, সেইটাকে যদি অন্যান্য আমাদের বিজেপি বিরোধী দলগুলো ঠিকঠাকভাবে মান্যতা দেয় এবং বাস্তব মাটিতে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তৃণমূলের নেতৃত্বে যদি আমাদের এখানে রাজনৈতিক বাকি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দলগুলো যদি সেই পরিসরের মধ্যে আসে, তাহলে বিজেপি শূন্য হওয়াটা অন্তত এ রাজ্যে বলে আমি অন্তত অবাক হব না। আমার ধারণা পার্টি ঠিক ব্যবস্থা নিচ্ছে। मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती को रोकने के लिए आज एक महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में तीस्ता सीतलवाद, हर्ष मंदर और दिगर मुकर्रिरीन ने बहुत पुरमग्ज़ तकरीरें की और कहा कि अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। आइए हम तस्वीरी झलके के साथ साथ उनकी बातें भी सुनते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब है। हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि राम के नाम पर या धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम करके लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है। ऐसा कुछ नहीं है। आज सेकुलरिज्म अगर और डेमोक्रेसी को अगर ज़िंदा रखना है तो हमें सड़कों पर आना होगा और हमें इसके ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि अगर हमें जीना है तो लड़ना होगा, हमें इंसाफ के लिए लड़ाई करना होगा। कोई भी धर्म छोटा नहीं है और ना ही कोई धर्म बड़ा है। धर्म अपना और सियासत बातें जो है वो अपनी जगह पे है। लिहाजा सियासत को धर्म से ना जोड़े और ना ही धर्म को सियासत से जोड़े, दोनों ही अलग है। सरकार का काम है मुल्क में अमन कायम करना। আজকে রামের নামে একটা মস্ত বড় অন্যায় হচ্ছে। এই মসজিদ ভেঙে মন্দির বানানো, এটা তো একটা মস্ত বড় অন্যায়, এটা ন্যায় বিরোধী। এটা পুরো সমর্থন পেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আর এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর জন্য। যাদের আজকে জেলে থাকা উচিত তারা সব আজকে মন্দির বানাচ্ছে। এটা ইতিহাস আর জনসাধারণের প্রতি এটা মহা বড় অন্যায়, ইতিহাসের বিরুদ্ধে। এটা ইতিহাস বিরোধী। এইভাবে ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। সে তো রোজই হচ্ছে। আজকে বিশেষ করে আমি রাম মন্দিরের কথাই বলছি।
যে রাম মন্দিরটাও একটা ডেমোক্রেসি কেজ ভেঙে যাওয়ার চূড়ান্ত উদাহরণ। राम के नाम पर आज कुछ लोगों ने खास विषय लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल गलत है। राम के नाम पर अगर सिर्फ एक मंदिर बनता, मंदिर तो देश में सैकड़ों मंदिरें हैं राम के नाम पर, सिर्फ एक मंदिर बनता तो इतनी बात नहीं थी। लेकिन इस मंदिर को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से सरकार ने टेक ओवर कर लिया, राम के नाम पर पूरे देश में लोकतंत्र पर हमला कर दिया जा रहा है। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में तो कुछ सड़कें बन रही है रामपथ, और रामपथ में हमने सुना कि 2200 दुकानें, करीब 800 मकान, करीब वहाँ 35 छोटे बड़े मंदिर, वहाँ के बहुत सारे मस्जिद और मज़ार, वो सब तोड़ दिया गया है। तो अयोध्या में अभी तो अदानी वहाँ पूरे ज़मीन हड़पने में लग गए हैं। तो राम के नाम पर कारोबार, राम के नाम पर सत्ता, तो राम तो सत्ता के प्रतीक तो थे नहीं, मंदिर कभी सत्ता का प्रतीक था नहीं। मंदिर आस्था के लिए है, मस्जिद आस्था के लिए है। तो ये आस्था और सत्ता, ये दोनों में जो घालमेल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस घालमेल के खिलाफ इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस घालमेल के खिलाफ देश उठ खड़ा हो रहा है। 1991 वर्ष के मुताबिक कहा गया था कि आप किसी मंदिर या मस्जिद को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पटना की मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद हमको दे दिया जाए, और इस तरह से 3000 मस्जिदें जो है उनके लिस्ट में है। तो ऐसे में फिर मुल्क में जो है वो बिल्कुल 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 1991 के कानून में सिर्फ अयोध्या को अपवाद माना गया था, क्योंकि वो मसला ऑलरेडी कोर्ट के पास था। बाकी तमाम जितने धार्मिक पूजा की जगह है, वो तमाम जगह के बारे में कहा गया था कि 1947 के 15 अगस्त जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, जहाँ गिरजाघर था वहाँ गिरजाघर, जहाँ गुरुद्वारा वहाँ गुरुद्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत साफ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 के वर्डिक्ट में उन्होंने भी अयोध्या को अपवाद माना। मस्जिद गिराने की कार्रवाई को बेहद एक तरीके से बड़ा संविधान विरोधी उल्लंघन का अपराध मानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ ज़मीन का बंटवारा कर दिया था कि चलो इससे अगर एक झगड़ा ख़त्म हो जाए, देश में एक शांति आ जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये शांति नहीं चाहती, और पूरे देश में अब 91 के कानून को ख़त्म करने की बात हो रही है। हर जगह जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे देश में नफ़रत फैलाने, देश को बांटने की साजिश हो रही है। ये बेहद खतरनाक है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। हम लोग अमान के लिए पूरे मुल्क को क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म से? हम इस प्लेटफॉर्म से हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम जो शहरी हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं, एक साथ मिल के यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग को जीना है, पीस अमन को बरकरार रखना है। इस प्रोसेसन जुलूस से हम लोग ये वार्ता, ये मैसेज देना चाहते हैं। सर, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण, हिंदुस्तान को कहाँ देखता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सीधी लड़ाई है। जो संविधान के जो मूल्य हैं कि हर इंसान यहाँ बराबर का है, हर मज़हब का, हर जाति का, एक तरफ ये विचार है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की जो आरएसएस और हिंदू महासभा की जो कल्पना है, उसके बीच में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। मुझे यकीन है कि उस तरफ पूरा पैसा है, सत्ता का पूरा भार है, लेकिन आम इंसान अभी भी संविधान पे मोहब्बत और समानता के समाज के लिए यकीन रखते हैं, और ये रैली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंदुत्व आखिर मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हिंदुत्व, अगर हम हिंदुत्व के रास्ता में जाएं तो हम लोग और दूर नहीं पाकिस्तान को देखें। क्या हम एक हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते हैं? आज जो है सर, यहाँ से क्या मैसेज देना चाहिए पूरे मुल्क को, अमन और अमान के? मुझे लगता है कि हमें ये बहुत साफ देखना है कि एक तरह की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं थी,
इस बात की भी लड़ाई थी कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे हम कैसा देश बनाएंगे, किसका देश होगा, किसका नहीं होगा। तो एक तरह से आज़ादी की लड़ाई का ये दूसरा दौर आज भी जारी है और बहुत निर्णायक मोड़ पे पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी जो देश से प्यार करता है उसे इस लड़ाई में शामिल होना है और कहना है कि हम संविधान और मोहब्बत दोनों पे यकीन रखते हैं। हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका काम अब यही रह गया कि वो जाके मंदिर में पूजा पाठ करें। वो बहुत खुल के संवैधानिक जो संविधान ने जो जिम्मेदारियां दी हैं कि सरकार का कोई मज़हब नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, उसके खिलाफ वो मतलब खड़े हुए हैं। हम सबको उनका जवाब देना ज़रूरी है। 2024 का चुनाव एक तरह से सामान्य चुनाव तो है नहीं, एक तरह से हम लोग एक बार फिर अपनी संविधान सभा का इलेक्शन कर रहे हैं इस चुनाव में। और ये मुझे लगता है कि बहुत सवाल उठ सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक का विश्वास बनाए रखें और ईवीएम पर अगर सवाल उठाए गए हैं तो जो 100% पेपर वोटिंग की जो मांग है उसको मानना ज़रूरी है। সবার উপর আক্রমণ করা, সর্বোপরি ভারতবর্ষের চরিত্র বদলাতে পারছে না এবং হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা ছড়াবার যে সারা দেশ জুড়ে যে কর্মসূচি নরেন্দ্র মোদী বিজেপির যে কর্মসূচি সেই কর্ম করছে, তারা কোথাও বলছে না স্বাস্থ্যের কথা, কোথাও বলছে না কাজের কথা, কোথাও বলছে না শিক্ষার কথা এবং গোটা দেশের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করছে। ধর্মটাকে পাবলিক সেক্টর করছে আর পাবলিক সেক্টর থেকে প্রাইভেটে বিক্রি করছে। এর থেকে বড় নিন্দনীয় কাজ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের একটা গৌরবান্বিত ঐতিহ্য আছে, তাই আমরা রাম মন্দিরটা বুঝি না, আমরা বুঝি যে হিন্দুত্বের নাম করে, রাম মন্দিরের নাম করে দেশে মুসলমান সম্প্রদায়কে, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে হটিয়ে দেওয়ার, বিতাড়িত করার চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য মেনে আমরা আজকে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।